जिंदाबाद 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 दुनिया को मजदूर एक हो आज को सम्मेलन सफल हो आज को सम्मेलन सफल हो जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब 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 जिंदाबाद 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 CITU जिंदाबाद 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 CITU कर पुकार इनकलाब जिंदाबाद CITU कर पुकार इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 এই মজদুরের ন্যূনতম পাট্টার দাবিতে CITU লড়ছে লড়বে লড়ছে লড়বে এই আমাদের মজুরিগুলো গেল কই সরকার জবাব চাই জবাব দাও জবাব চাই জবাব দাও। When in Darjeeling the federation was formed, Comrade C.K. Unnikrishnan was there and was elected as the Federation All India Committee member. So I request Comrade C.K. Unnikrishnan to unflag the CITU flag and hoist the flag and to start our conference. इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
CIPWF जिंदाबाद 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 ऑल इंडिया प्लांटेशन फेडरेशन का वर्कर फेडरेशन का सम्मेलन सफल करो ऑल वर्कर फेडरेशन को 10वां सम्मेलन सफल करो इंडिया प्लांटेशन वर्कर फेडरेशन को 10वां सम्मेलन सफल करो इनकलाब जिंदाबाद 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 Comrade, with Comrade CK Unni Krishnan, we all salute our red flag. Salute. इनकलाब जिंदाबाद 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 CITU जिंदाबाद The martyrs column. शहीदको रगत भुल्ने छैनौ भुल्दैनौ 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 शहीद तिम्रो रगत भुल्ने छैनौ भुल्दैनौ 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 Federation's Vice President and All India CITU President, Comrade Hemlata, will give floral tribute to the martyr column. शहीद कमरेड अमर रहोस् शहीद कमरेड अमर रहोस् शहीद कमरेड तिमीलाई हामी भुल्ने छैनौ भुल्दैनौ इन्कलाब जिन्दाबाद शहीद तिमीलाई भुल्ने छैनौ भुल्दैनौ CITU General Secretary, Comrade Tapan Sen, will now give flower to the martyrs column. इन्कलाब जिन्दाबाद CIPWF जिन्दाबाद CITU National Secretary, Comrade A.R. Sindhu, इन्कलाब जिन्दाबाद CIPWF our जिन्दाबाद national peasant leader, Comrade KP. People who are working for 200 change, sometimes they sleep thinking that their owner is some person and they wake up because overnight somebody has bought the garden. There are times when they make money and the companies are there, and in the winter months they leave. And women folk, the men can come and work somewhere else, but the women folk, they do not know anything apart from collecting leaves. All their lives they've just collected leaves, tea leaves. Things have to change. I'm happy this conference is happening in Darjeeling. I hope with this conference, Darjeeling tea will get the problems that our people face will be shared in a national platform. It has to be shared in the national platform. I have said several times that Darjeeling tea is not tea. Darjeeling tea is the blood and sweat of our workers. Blood and sweat. I hope, madam, sirs, from all places of India, that you will take this cry in the gardens. I just visited Ambotia some days back. It's a closed garden. Now it's open recently. 4 months it was closed. And when I went there, the mothers were crying. And you know what they were crying for? After 75 years of independence, sir said rightly, 75 years of independence, Ambotia has no government school. So the closest government school is in Kershaw. And that's fine. But to go from Ambotia to the closest government school, each parent has to pay monthly 2,000, 2,500, 3,000 just car fare. 4 months they could not pay the drivers. And the drivers understood. But then, now that the school is closing, final examination is there. So the drivers also didn't have money to take them. They said, before final examination, please clear the bill. Give me the taxi fare, otherwise I cannot take your child to school. And they were crying because they could not pay that 2,200. In India, 75 years to even go to a government school, 2,500 is the barrier. Things have to change in Darjeeling. And I hope my party is new, 11 months. Lekin my thinking is 100%
for the poorest of the poor, and my thinking is left. All comrades, unite. Thank you very much. Democratic people of Darjeeling for hosting this 10th All India Plantation Workers Federation's conference, that too in the Golden Jubilee year, in the same place where the Federation was first born. It was one of the old place of the plantation workers movement in the country. First Federation conference took place here, and again after 50 years, during these 50 years there are many struggles, the movement expanded, there are immense sacrifices all over the country by the plantation workers in their respective areas. चारों तरफ 50 साल का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। ऐसे कोई कोना नहीं है हिंदुस्तान के जहां संघर्ष जारी नहीं रहा प्लांटेशन वर्कर्स का। और ये प्लांटेशन वर्कर्स का लड़ाई का एक खासियत, एक विशेषता ये है, वो केवल अपने मांग के लिए नहीं लड़ रहा है, उसको मांग के साथ साथ प्लांटेशन एरिया इज इटसेल्फ ए कम्युनिटी, एक समाज बना लेता है। वो अपने मांग के लिए संघर्ष करने के साथ साथ वो समाज के दूसरे हिस्सा का, जनता का भी बढ़ोतरी के लिए, अच्छाई के लिए, वो अधिकार के लिए वो लड़ते हैं। ये प्लांटेशन, द होल प्रोडक्शन प्रोसेस, द वेरी कैरेक्टर ऑफ प्लांटेशन इंडस्ट्री, it historically while developing, it developed a community. At the same time, it supplements many other small employment opportunities, small shops, a whole township, a whole society, it developed. ये प्लांटेशन मूवमेंट का, इंडस्ट्री का वेरी कैरेक्टर है, और इसी के चलते ये लड़ाई का महत्व है। शोषण के खिलाफ जो संघर्ष, जो मजदूर आंदोलन का जो मेन चार्टर है, खास करके CI2 लाल झंडा जो ट्रेड यूनियन धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने सिर्फ अपने मांग के लिए लड़ते हुए हम शोषण के आधारित जो व्यवस्था है उसको उखाड़ना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। जस्ट नाउ माय फ्रेंड मामलो बोल के गया, जो गिविंग द वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टी ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रोड्यूसिंग a huge profit by the owners. The workers' condition is deteriorating every day, day by day, गरीबी से गरीबी तक। रो रहा है बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। जस्ट फ्रेंड हैव टोल्ड व्हाई दिस? दिस इज द क्वेश्चन। The working class movement seeks a comprehensive answer to this question, and the question's answer is decided through the experience of the world movement, working class movement. जो ये system must go, and while a system has to go, a system is not run automatically. In the running of every system, globally, the economic system, the capitalist system, it has got its own politics. It has got its own game plan. And the history says, जो ये जितना जो पूंजीवाद के प्रक्रिया में चलते चलते उससे मुनाफा के लिए गंदगी में उतार आता है, समाज में जहर घोलता है। प्लांटेशन वर्कर्स का मूवमेंट का जो एक्सपीरियंस है सारे देश में, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। उसका जो एक्सपीरियंस है वो लड़ते हुए अपने कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, पूरा समाज को डेवलप करते हैं और उसका लिए भी लड़ते हैं। और साथ साथ मुनाफा लूटने वाले मालिका ने और उसका जो पॉलिटिकल एजेंट बैठता है सरकार में, दोनों मिलके उसको टुकड़ा करने के लिए
उसके अंदर लड़ाने के लिए समाज के अंदर जहर होता है, जहर होता है। जब दो कम्युनिटी को लड़वाता है, कोई कम्युनिटी का परवाह नहीं करते हैं। वो जानते हैं ये लड़ाई चलेगा तो हमारा मुनाफा का मीटर चढ़ते रहेगा। हम ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है। 2 दिन का सम्मेलन है। हम अपने 50 पिछले दिनों का संघर्ष और आज का दिन का चुनौती को विचार करते हुए नेशनल लेवल में कैसे प्लांटेशन वर्कर्स का मूवमेंट को हम आगे बढ़ा पाए। कई ये हमारे देश के आर्थिक ढांचा के अंदर प्लांटेशन क्षेत्र का बड़ा योगदान है। आज दुनिया भर सभी ने बोल रहा है ग्लोबल स्लोडाउन, ग्लोबल क्राइसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लांटेशन सेक्टर में कोई क्राइसिस नहीं है। प्लांटेशन सेक्टर में मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। प्लांटेशन सेक्टर में मोनोपोली पावर और ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है मालिकान के, with the support of their political agents sitting in the governance of the country. ये अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी क्लियर एंड ऑन दैट प्रेमाइस फेडरेशन ने 2 दिन में अपने अपने एरिया का संघर्ष को छानबीन करते हुए उसका कमजोरी क्या है और खूबियां क्या है दोनों को ही विचार करते हुए उसको ठीक करते हुए हमको एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी करेंगे। इसी दिशा में 2 सम्मेलन हो रहा है। 10वां सम्मेलन उसका गोल्डन जुबिली ईयर में, एंड आई एम श्योर दो कॉन्फ्रेंस विल make the plantation federation stronger to take on the challenge head on. हमारी मंजिल एक ही है जहां से जो हमला हो रहा है मजदूरों को, ये व्यवस्था और नीति के चलते, और ये नीति आपसे आप पैदा नहीं होता है आसमान से। नीति का पीछे एक राजनीति है, खून चूसने वाले राजनीति, और वो खून चूसने का वातावरण को जिंदा रखने के लिए वो समाज में जहर घोलता है, एकता तोड़ने वाला जहर घोलता है, गरीब लोगों को इतर बितर करने के लिए समाज में जहर घोल रहा है। तो उसको खिलाफ भी संघर्ष, ये दोनों संघर्ष अपने अधिकार रक्षा, अपने समाज को बचा के रखने का जो लड़ाई, इसी दिशा में प्लांटेशन सेक्टर का मूवमेंट का एक मंजिल है। और ये 2 दिन सम्मेलन में हम चर्चा करेंगे। हम दोबारा दार्जिलिंग का इतिहास, संघर्ष के इतिहास, जनवाद के इतिहास बहुत घटना बहुल है। हम लोग बहुत कुछ सीखा वो संघर्ष से, जाना वो संघर्ष में, और इसी प्रक्रिया में जितना भी इधर उधर था, मजदूर आंदोलन अभी एक हो रहा है, एक बन रहा है, यूनिटी बढ़ रहा है, कोई तोड़ नहीं पा रहा है वो यूनिटी को। इसी में खूबियां है CI2 का और अपने ऑल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन का जो घटक संगठन है उसी का, जो इसी दिनों में संघर्ष करते हुए हम एकता को प्रसारित किया। वो एकता को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया। इसको बचाना है। एकता और संघर्ष के राह पर दुश्मन को चिन्हित करने का प्रक्रिया को पर तीर मारते हुए हमको आगे बढ़ना है। और ये काम के लिए जो महत्वपूर्ण काम है 2 दिन होगा, इसी को होस्ट करने के लिए हम फिर बोलेंगे दार्जिलिंग के आम मेहनत कश आवाम जो भूमिका लिया है उसको बधाई देते हुए, लाभ सलाम देते हुए I conclude myself. Thank you all. Thank you to all the delegates who have come all over the country to make this conference success. इन्क्लाब जिंदाबाद। तपाईहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद। र आउने दिनहरुमा कुनै पनि कामहरु गर्दा हामी यसरी एकजुट भएर गर्न सक्यौं भने हामी सबैले एउटा लक्ष्यमा पुग्न सफल हुन्छौं होला, त्यो आशा राख्दै तपाईहरुलाई प्रतिनिधि रूप में मैं बोलता हूँ। आपको अनेक असुविधाएं है, यहाँ पर
फिर भी जिस मकसद से आप आए हुए हैं, दार्जिलिंग आपको स्वागत करता है और आप अपनी मिशन को पूरा करके यहाँ से चले जाएंगे। दार्जिलिंग मन में रख कर चले जाएंगे। दार्जिलिंग की जनता आपको भूल नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी अपने हृदय से आपको याद कर सकता है, आपको माया स्नेह दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। आज अल इन्डिया प्लान्टेसन फेडरेसनको 10th कन्फरेन्स आजदेखि सुरु भयो र आज बिहान तल रेलवे स्टेसनबाट र्याली निकाल्यौँ। त्यो र्याली मजदुर र्यालीको नाम दिएको थियौँ र मजदुर र्याली जोइन्टली यहाँ जिमखानासम्म आए। अनि जिमखानामा यहाँ विभिन्न ट्रेड युनियनको पक्षबाट यो कन्फरेन्सलाई अभिनन्दन दिँदै उहाँहरूले वक्तव्य राख्नुभयो र त्यसरी नै अब यहाँ हाम्रा अल इन्डिया सेक्रेटरी, अल इन्डिया प्रेसिडेन्ट, CITU का, कॉफ़ी फेडरेशन का अल इन्डिया जनरल सेक्रेटरी र प्लान्टेसन फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी, त्यसरी नै CITU सेन्टर का नेतृत्व साथसाथै विभिन्न इलाकाको डेलिगेटहरू यहाँनिर आउनुभएको थियो र यो डेलिगेटहरू लिएर यहाँनिर भयो। अब यो सेसन हामीले ओपन सेसन गरेको थियौँ, आज र्यालीमा आउनेहरू पनि जोइन गरेको थियो। अब यो पछि हाम्रो इन्डोर सेसन सुरु हुन्छ 2 दिनको। विशेष गरी के विषय? चिया बगान आन्दोलन, रबर, कफी, यो विभिन्न देशभरिको प्लान्टेसनमाथि यो हाम्रो कन्सेप्ट। यो मिनिमम वेजेस हजुर हजुर सबै हजुर। ये जो तमाम प्लांटेशन इंडस्ट्री है और ये जो दार्जिलिंग का आम जनता और मज़दूर भाई है, ये लोग हमारा दिल में है। ये हमारा बंगाल का रानी है। हम लोग कहते हैं मुकुट जैसा है। तो दार्जिलिंग हिल आज तमाम हिंदुस्तान से प्लांटेशन वर्कर लोग इधर आए हैं, क्योंकि ऑल इंडिया प्लांटेशन फेडरेशंस का ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो 50 इयर्स जुबली कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेशन आज हो रहा है। तो इसमें जो फीलिंग्स है, ये आज आज़ादी का बाद भी 75 साल हो गया, तब भी प्लांटेशन वर्कर का जो समस्या है, मिनिमम वेज का समस्या, लैंड का समस्या और गरीबी का समस्या है, जो चीज़ का भाव बढ़ता है मजदूरी नहीं बढ़ता है, ये जो समस्या है ये लेकर हम लोग आलोचना करेंगे 2 दिन। और इधर से तमाम हिंदुस्तान में जो प्लांटेशन वर्कर है वो लोग को लेकर आंदोलन होगा, इसका प्लानिंग भी हम लोग करेंगे। इसीलिए सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें कौन-कौन आया है इसमें? दार्जिलिंग या बंगाल में मिनिमम वेजेस स्पेशली दार्जिलिंग में अब तक लागू नहीं हुआ, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, गवर्नमेंट बहुत बार कमेटी बनाया, कमेटी का सुपारिश भी हुआ है। आज 4-5 साल मिनिमम वेज कमेटी का जो रिकमेंडेशन वो लागू नहीं हो रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। ये तो मज़दूर का साथ जब पूरा बेईमानी हो रहा है। जो कमेटी बना था, जो सरकार कमेटी बनाया और सरकार वही कमेटी का जो सुपारिश है वो सुपारिश वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आज जो प्लांटेशन का जो जॉइंट फोरम का तरफ से आज जो मूवमेंट हो रहा है, इधर CITU का भी इम्पोर्टेंट रोल है। और तमाम चाहे जो इंडस्ट्री है बंगाल में और दार्जिलिंग में, पहाड़ में जो टी बागान है, जो मज़दूर भाई लोग हैं, ये लोग भी आज लड़ाई करते हैं। और बोनस के लिए कितना लड़ाई करना पड़ता है, लेकिन आज चाय बागान में जो प्रॉफिट आता है और चाय बागान का जो मार्केट है, दार्जिलिंग टी का जो मार्केट है, वो तो तमाम हिंदुस्तान नहीं तमाम दुनिया में मार्केट है और ह्यूज प्रॉफिट ये लोग अर्न करते हैं। लेकिन मज़दूर का उनका जो हिस्सा है ये लोग नहीं दे रहा है। ज़मीन का जो हिस्सा है, पट्टा का जो देने का बाद है, वो भी नहीं दे रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग को लड़ाई करना होगा, हम लोग को आलोचना करना पड़ेगा। तो सर, आप तो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हम तो चाय बागान में घूम घूम के, मोहल्ला में, बस्ती में घूम घूम के जो समस्या उस समय में था, हम लोग हल करने के लिए कोशिश भी किया है। तो सर, इतने तीन डिकेड हो गया, अभी नया गवर्नमेंट आया हुआ, तो इस आप लोग तो हमेशा बोलते हैं, लेकिन अभी तक कोई फॉलो अप नहीं हुआ, तो इसके बारे में क्या कहें? नहीं, आज देखिए, ये जो 10-11 साल चल रहा है, उसका पहले चाय बागान में जो उसका आगे जो प्रॉब्लम था वो हल करने के लिए घर घर में जो इलेक्ट्रिसिटी देने का बाद है, पानी का देने का बात था, जो हर
जो एम्प्लॉय का घर देने का बात था, जो उनका जो ट्रीटमेंट का, जो अस्पताल का डेवलपमेंट का बात था, ये सब लेकर हम लोग लड़ाई किया। लेकिन तब प्लांटेशन वर्कर का जो हिस्सा था, जो वेज का साथ जो बेनिफिट वो भी मिलता था। लेकिन आज मालिक लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से खाद्य सुरक्षा आइन का जो चावल गेहूँ मिल रहा है, तो इसके बाद वर्कर लोग का जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से, मैनेजमेंट का तरफ से जो हिस्सा देने का बात था, तो बेनिफिट नहीं दे रहा है। वेज तो कम से कम 400-450 रुपया होना चाहिए। प्लांटेशन में आज 400-450, 500 रुपया पर डे वेज होना चाहिए। आज 210 रुपया, 500 रुपया उसको मिल रहा है। तो ये तो गलत बात है ना। आज हर चीज़ का तो दाम बढ़ रहा है, कैसा मजदूर लोग जिएंगे? इसीलिए लड़ाई जोरदार होगा। जैसे पहाड़ में जो अभी लागू हुआ है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि जो टी गार्डन है उसको होम स्टे में भी कन्वर्ट किया जाए, सर्टेन परसेंट 20%, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, जो भी करना है मजदूर लोग का लेकर आलोचना करके करना है, क्योंकि इसका पीछे कॉरपोरेट का फ़ायदा ज़्यादा है, मैनेजमेंट का फ़ायदा ज़्यादा है, मजदूर का फ़ायदा क्या आएगा ये सोचना पड़ेगा। जो प्लांटेशन में जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो मैनेजमेंट का फ़ायदा के लिए सरकार सोचता है, लेकिन वर्कर का फ़ायदा के लिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचता है। हमारा बात है जो भी डेवलपमेंट करना है तो वर्कर को बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, उसका डेवलपमेंट, उसका जो मांग है वो पहले पूरा करना पड़ेगा। तो होम स्टे जो हो रहा है या टी गार्डन एरिया में, उसका खिलाफ में कि सपोर्ट में है? नहीं, जो बात है ये सब ट्रेड यूनियन में आलोचना करना पड़ेगा। सब ट्रेड यूनियन आलोचना करके फैसला करेगा। लेकिन अभी तक तो सरकार को तो कॉरपोरेट के लिए करना चाहता है। जो टूरिज्म, जो डेवलपमेंट होगा, फ़ायदा कॉरपोरेट को मिलेगा, फ़ायदा मैनेजमेंट को मिलेगा, लेकिन वर्कर लोग को क्या मिलेगा? जो बात आप लोग कहते हैं जो होम स्टे, तो ठीक है, लेकिन इसमें फ़ायदा मजदूर का क्या मिलेगा? टी गार्डन का वर्कर का जो लाइफ, जो उनका जो परिस्थिति में वो लोग हैं, उनका जीवन यात्रा का विकास होगा, उन्नति होगा, ये तो नहीं हो रहा है। असली बात तो ये है, जो बेनिफिट होता है वो प्लांटेशन का मैनेजमेंट को होता है। सर, काइंडली योर नेम प्लीज। सीटू का जनरल सेक्रेटरी बंगाल का अनादि साहू, एक्स लेबर मिनिस्टर। 10वां सम्मेलन हो रहा है सर्वभारतीय जातीय कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन। मतलब हमारे देश की जितने भी चाय, कॉफ़ी, राबर, कार्डामम जो उद्योग है, वहाँ की जो वर्कर कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूनियन है, उन सब की एक फेडरेशन है, एक प्लेटफॉर्म है, उसका ही कॉन्फ्रेंस। बात इस जगह पर है कि 72 साल में, आज से 50 साल आगे, इस दार्जिलिंग से ही मज़दूरों का जो हाल हकीकत को परिवर्तन करने के लिए सबको एक जगह पर आना होगा। और हम संविधान के अनुसार हमारे जो राइट्स है, हमारे जो लेबर राइट्स है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, राइट्स ऑफ द वर्कर, राइट ऑफ द सिटीजन जो है, उसको लेने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बीते 50 साल हमने ये लेके काम किए और आज 10वां सम्मेलन में हम दार्जिलिंग में ही यहाँ पर है। वी आर वेरी ग्लैड दैट ऑल सेक्शन ऑफ द दार्जिलिंग टाउन, दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी, द टी गार्डन ट्रेड यूनियंस, the political parties, the municipality representatives who are now in the municipality Darjeeling, all have welcomed us. And out the delegates representative came from Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Tripura, Assam, Bengal and all plantation states. कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का ट्रेड यूनियन? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का ट्रेड यूनियन नहीं है। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ द प्लांटेशन वर्कर्स। सो एवरी पर्सन हु वांट कि चाय बागान का, कॉफ़ी बागान का, रबर बागान का मज़दूर का हित हो, ये प्लांटेशन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, सबको ही आके यहाँ जुटते हैं। और आज जब हम यहाँ पर आए तो हमारा मेन मोटो है कि अगर दार्जिलिंग का टी को सम्मान जो है, गरिमा जो है, उनको अगर हम रक्षा नहीं कर पाते हैं तो भारतवर्ष का टी का कोई इज्जत नहीं होते हैं, वेट नहीं होते हैं। जबकि आज के दिन में
दार्जिलिंग चाय वर्कर्स की हाल हकीकत बहुत ही ख़राब है और दार्जिलिंग टी गार्डन्स की लैंड को ग्रैब किया जाने की गवर्नमेंट को पॉलिसी ले रहा है। 15% ऑफ द लैंड ऑफ टी गार्डन बंगाल असेंबली में पास हो गया है। ये हमारे लिए एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा थ्रेट है, दार्जिलिंग के एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा थ्रेट है। हमें लैंड राइट्स का, हमारे मिनिमम वेज की, हमारे एडुकेशन के लिए, हमारे जो हेल्थ की राइट्स हैं इनके लिए ये हमें एक नेशनल चार्टर, एक नेशनल फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। देश की और कई फेडरेशन है प्लांटेशन में, लोकल यूनियन, ट्रेड यूनियन भी है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का अपना जो ये है प्रोग्राम है, उनका विज़न है। लेकिन जहाँ तक बोला जाए कि प्लांटेशन इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट pioneer industry for the civilization and for the industrialization of our country since colonial era। तो आज जब हम यहाँ दार्जिलिंग में आए 2 दिन के लिए तो तमाम डेलीगेट की चर्चा होगी कि आज 75 साल आज़ादी के बाद हमें मज़दूरों को, प्लांटेशन मज़दूरों को कौन सा मुद्दा लेके उठना चाहिए, जैसे कि हम हमारी इंडस्ट्री को सेव कर पाए, उसको और आगे बढ़ा पाए, हमारे क्लाइमेट के ऊपर जो थ्रेट आ रहा है उसको हम ठीक कर पाए, हमारे यूनिटी के ऊपर जो थ्रेट आ रहा है, जो हमारे सोसाइटी के हार्मनी के ऊपर जो थ्रेट आ रहा है उसको हम कैसे संभालें और हमारे अपना जो मजदूर का हक है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। जैसे ट्रेड यूनियन को बुलाया, उन लोग अपने आप आए कि आप लोग उनको इन्विटेशन दिए थे? नहीं, सब कोई सुन के आए हैं। इन जनरल वी हैव given the invitation to all। तो दार्जिलिंग प्लांटेशन, तराई प्लांटेशन यूनियन जो अनिल थापा का पार्टी का है, उनको आज इन्विटेशन नहीं था, वो नहीं देखा दिया क्या? नहीं, सभी पार्टी का तो कोई पार्टी को हम लोग नहीं किया है, ट्रेड यूनियन को किया है, सभी ट्रेड यूनियन को किया है। आपने बताया था? हाँ, सबको एक साथ तो हम लोग लड़ते भी है, एक साथ मीटिंग भी करते हैं। अनिल थापा जी का जो ट्रेड यूनियन है एक ही साथ हम लोग काम करते हैं। गोरखा, उनका कोई एंगेजमेंट है, शेड्यूल है, होगा। गोरखा भवन में हम लोग बीते सितंबर महीना का, बीते साल 10 सितंबर वी ऑल ट्रेड यूनियन ऑफ बंगाल मेट हेयर। हाँ, सो ट्रेड यूनियन का डायनामिक्स है, ट्रेड यूनियन का मुद्दा है कि वर्कर का अगर एक जगह पर ना लाए तो हम अलग थलग होके कोई असली अच्छा काम नहीं। You have to fight against the land rights and wages. So what is the situation, present situation? लैंड राइट्स की जो है ये पार्लियामेंटेरियन स्टैंडिंग कमेटी स्वीकार किए है कि प्लांटेशन के भीतर जो लैंड है, दिस इज द एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ द वर्कर्स। पार्लियामेंटेरियन स्टैंडिंग कमेटी ने स्वीकार किया। एक, so the land rights to the plantation society is to be given by government of India, by the concerned state government, Assam हो, त्रिपुरा हो, इंडिया हो। एक नंबर। 2 नंबर, the minimum wage to be ensured, that standing committee has given the report। The Assam government, the Bengal government, they are trying, they have been compelled by our joint movement, but they are not clear। So the 3 plantation state, Kerala, कर्नाटक, तमिलनाडु की गवर्नमेंट वहाँ पर मोर देन 400 रुपीज़ वेज इम्प्लीमेंट कर दिया है, वहाँ से कोई माइग्रेट नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की आसाम की बीजेपी गवर्नमेंट बोलिए या कुछ भी बंगाल की जो तृणमूल गवर्नमेंट बोलिए, इन्होंने मालिक लोगों को इतने डरता है और मालिक लोगों का बात सही चलते हैं, जिसके चलते अभी भी यहाँ 200 के आसपास पड़ा रहा। हमारे ये है कि देखिए, गवर्नमेंट जिसका भी हो, हमारे मिनिमम वेज हम लेंगे ही। हम गवर्नमेंट को फोर्स किया कमेटी बनाने के लिए, उसका प्रोसेस लेने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने ढीलापन चल रहा है तो हमें क्या करना है, हम करके हम उस रास्ता पर चलेंगे। लैंड राइट्स हम लेंगे ही, हमारी इंडस्ट्री को हम सेव करेंगे ही, हमारे लैंड को हम ग्रैब करने किसी हालत पर देंगे ही नहीं। हमारे जो एनक्लेवमेंट है, जो एनस्लेवमेंट है टी गार्डन की या प्लांटेशन की, उसको हम छोड़ाएंगे। ये चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है कि 50 to 20%। नो, वी विल नॉट अलाउ, नो वेयर द लोकल पीपल। नहीं, आपका दार्जिलिंग में ही कई जगह पर आए थे, DM, DLRO सब आए थे, लेकिन हटा दिया सोसाइटी का आदमी। वी सैल्यूट देम, वी कंग्रेचुलेट देम, सेव योर लैंड फास्ट, अदरवाइज दार्जिलिंग विल बी लॉस्ट।